Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. चैप्टर नंबर 6 regression को डिस्कस कर रहे थे. टुडे लेक्चर नंबर 18 और स्टूडेंट्स टॉपिक मेरे पास है regression analysis में रेजिडुअल्स का टॉपिक है और इसमें हम लोग एस्टिमेट करेंगे रेजिडुअल्स को यूजिंग regression लाइंस और एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एस्टिमेट ऑफ रेजिडुअल्स यूजिंग regression लाइंस विद एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन. The contents of this lecture, students, first point में मैं briefly explain करूँगा residuals को using regression line y and x, और second point में मैं explain करूँगा residuals को using regression line x on y, और then third point में मैं आपके साथ discuss करूँगा exercise question 6.15 को, और इसमें हम estimate करेंगे अपने residuals को using regression line y on x. First of all, I will explain the term residual or error using regression line y on x. First of all, I will explain the term error. Error means the difference between the estimated value and the actual or true value. True value और estimated value के दरमियान में difference जो है वो error explain करता है, और in regression analysis में error जो है वो आपका residual होगा, और residual को हम लोग calculate करेंगे using the line of regression y on x. Y equals to a plus bx is a real line equation. The difference between the observed value of the dependent variable y and the values predicted using the estimated regression line y hat a plus bx. जब स्टूडेंट्स आप लोग एस्टिमेट कर लेते हैं अपनी regression line y equals to a plus bx को, और आपके पास रियल वैल्यूज जो है वो y वैल्यूज गिवन होती हैं, तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो है वो आपके पास जो है वो एरर होगा, और आपके पास इसको हम लोग डिनोट करेंगे y माइनस y हैट. दिस इज द रेजिडुअल. The sum of residual or error is always equal to 0. Summation y minus y hat equal to 0. Same as the property of the arithmetic mean summation x minus x bar equal to 0. तो similarly यहाँ पे regression analysis में भी students हमारे पास y minus y hat, y आपकी actual values हैं, और estimated values जो हैं वो आप लोग calculate कर सकते हैं using x values. आप जब अपनी line को estimate करेंगे और then फिर अपने a और b की values को x की values को put करेंगे और b से regression coefficient से मल्टीप्लाई करेंगे और a को ऐड करेंगे, तो आपके पास जो है एक न्यू कॉलम जनरेट हो जाएगा y हैट वैल्यूज का. वो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यूज होंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास y वैल्यूज होंगी. y वैल्यूज का डिफरेंस आपने एस्टिमेटेड वैल्यूज से लेना है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल इज ऑलवेज मिनिमम. और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल स्टूडेंट्स, इसका कोई ना कोई आंसर आपके पास 0 से लेके 0 से नियरेस्ट टू 0 जो होगा, इसको हम लोग जो है वो समेशन y माइनस y हैट के स्क्वायर से डिनोट करेंगे. तो ये आपके पास जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है. तो ये आपके पास जो है वो रेजिडुअल है, जिसको हम लोग regression लाइंस में यूज करेंगे, regression लाइन y on x में, और देन फिर हम लोग उसको यूज करेंगे रेजिडुअल्स को regression लाइन x on y में. The second point, students, I will explain the residual using the regression line x on y. As we know that the line of the regression x on y x equal to c plus dy, और इसमें हम लोग error को और residual को कैसे estimate कर सकते हैं. The difference between the observed value of the dependent variable x, यहाँ पे students आपके पास इस line में regression line x on y में left side पे जो variable आपने explain किया है x which is the dependent variable, और right side पे जो variable है आपके पास y which is the independent variable, और जब आप इसी line को estimate करेंगे तो आपके पास x hat होगी. Or the difference between the observed value of the dependent variable x and the values predicted using estimated regression line x hat equal to c plus dy, और वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप लोग जो वैल्यूज एस्टिमेट करेंगे यूजिंग एस्टिमेटेड regression लाइन से, और वो हमारे पास जो है वो x hat की वैल्यूज जनरेट होंगी, और वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी regression लाइन, एस्टिमेटेड regression लाइन वो x hat equal to c plus dy से, और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y जो है वो आप पुट करते जाएंगे. जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन में y वैल्यूज गिवन होंगी उसको यूज करते हुए आप x इस regression एस्टिमेटेड regression लाइन में वैल्यूज को y वैल्यूज को पुट करेंगे, और x हैट की वैल्यूज जो है वो आपके पास जनरेट हो जाएंगी, और इसका डिफरेंस जो है वो आपके पास रेजिडुअल कहलाएगा x माइनस x हैट इन द regression लाइन x on y में, और the sum of the residual is always equal to 0 for x on y, summation x minus x hat equal to 0, और then students इसका sum of square of residual is always minimum, और वो आपके पास जो है कोई ना कोई वैल्यू इसमें जनरेट हो सकती है, summation x minus x hat का square greater than or equal to 0. तो ये आपके पास जो है वो आपके पास residual की टर्म्स हैं, जो कि residual जो है किस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग द लाइन ऑफ द regression x on y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक x और y का डेटा गिवन होगा, और आपने x हैट यानी आपने अपनी लाइन को एस्टिमेट करना है regression लाइन x on y को, और देन फिर आपने x एस्टिमेटेड लाइन एस्टिमेटेड वैल्यूज को जो है वो फाइंड करना है corresponding to the values of the y, और देन फिर उनको डिफरेंस आपने यूज करना है x वैल्यूज के साथ, तो x माइनस x हैट आपको आ जाएगा, और विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो सम ऑफ रेजिडुअल ऑफ द वैल्यूज
इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल जो है वो इज ऑलवेज मिनिमम होगा। नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.15 और इसमें हम एस्टिमेट करेंगे अपनी रेजिडुअल्स को फॉर द रिग्रेशन लाइन y on x। Exercise question 6.15 showed that the sum of errors or residuals or sum of square of errors or residuals are 0 for the following data। x और y का डेटा स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है। x की इंफॉर्मेशन में 1 2 3 4 5 वैल्यूज का डेटा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y वैल्यूज गिवन है 0 1 2 3 एंड 4। और सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एस्टिमेट करनी है रिग्रेशन लाइन y इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू a प्लस b x को एस्टिमेट करना है और देन फिर हमने शो डेट करना है समेशन y माइनस y हैट इक्वल टू 0 और देन फिर हमने इसका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल समेशन y माइनस y हैट का स्क्वायर इक्वल टू 0 जो है इसको शो करना है, साबित करना है, प्रूव करना है। तो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो सबसे पहले अपनी रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करेंगे और देन फिर हम लोग इसका रेजिडुअल फाइंड करेंगे और 0 इसको साबित करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन y on x स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड कॉलम्स जो है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिपेयर कर लूंगा। x और y की इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स राइट करें इन कॉलम्स में। x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 और समेशन x हमारे पास 15 है और देन फिर हमारे पास जो है y की वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज का सम स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लें 0 1 2 3 एंड 4 व्हिच इज इक्वल टू 10, सम y इक्वल टू 10 और देन रिक्वायर्ड कॉलम्स फॉर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट b y on x के लिए दोनों का प्रोडक्ट x y आपने लेना है और x की वैल्यूज को और y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर इज 0। देन आपने 2 मल्टीप्लाई करना है 1 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 और देन आपके पास 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, आंसर इज 6 और नेक्स्ट वैल्यूज जो हैं वो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 12 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 20 और इसका सम स्टूडेंट्स ले लेंगे समेशन एक्स वाई वैल्यूज का विच इज समेशन एक्स वाई विच इज इक्वल टू 40। तो देन लास्ट जो कॉलम है वो हम प्रिपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर आपने ईच वैल्यू ऑफ एक्स को आपने इसका स्क्वायर लेना है और राइट करना है एक्स स्क्वायर के कॉलम में। तो आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 और अगेन इसका जो है वो सम आपने कैलकुलेट करना है और समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 55। तो ये हम लोग यूज करेंगे अपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूला के अंदर और देन फिर हम एस्टिमेट करेंगे अपनी रिग्रेशन लाइन y on x को। Students, using formula number 4 of regression coefficient b y on x, we have putting the sums in this formula and get the value of b। तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए इनके सम्स को। n इक्वल टू 5, समेशन x 15, समेशन y 10 है, समेशन x y 40 एंड समेशन x स्क्वायर इक्वल टू 55। फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स फार्मूला नंबर 4 जो कि आपके पास इजीएस्ट फॉर्म है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की n समेशन x y माइनस साइन और समेशन x इंटू समेशन y। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स x टर्म्स यूज होंगी b y on x की वजह से n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर और वैल्यू स्टूडेंट्स आपने पुट करनी है। n आपके पास 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और आपके पास समेशन x y की सम जो है वो 40 हमने कैलकुलेट किया था, समेशन x और समेशन y 15 इंटू 10 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स समेशन x स्क्वायर 55 है, मल्टीप्लाई होगा 5 से और समेशन x की वैल्यू जो है वो आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर और स्टूडेंट्स आपने इसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने सॉल्व करना है और कैलकुलेट करनी है b की वैल्यू को और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 और देन फिर आपने y इंटरसेप्ट यानी a को कैलकुलेट करना है और a का फॉर्मूला स्टूडेंट्स y बार माइनस b x बार है और इसमें आपने अपनी वैल्यूज को पुट करना है और इसके लिए आपने x बार और y बार को कैलकुलेट करना है। समेशन x आपका 15 है, 15 डिवाइडेड बाय 5 समेशन x ओवर n आंसर इज 3। आपके पास x बार की वैल्यू 3 होगी और देन आपके पास y बार जो है उसमें y 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 2। y बार की वैल्यू आपके पास 2 है और देन इसको आपने पुट कर देना अपनी y इंटरसेप्ट की फॉर्म, y इंटरसेप्ट फार्मूला के अंदर y बार माइनस बी एक्स बार। y बार की वैल्यू 2 यूज करेंगे और आपके पास b की वैल्यू जो है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x बार की वैल्यू 3 से और वी हैव द आंसर, आंसर आपके पास आ जाएगा -1 और स्टूडेंट्स इस देन फिर हम लोग जो है अपनी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y on x में इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास y हैट इक्वल टू -1 प्लस 1.0x। दिस इज द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन यूजिंग फॉर्मूला 4 ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x। After estimating the regression line y equals to a plus bx, now I will have to find the sum of residuals and sum of square of residual। तो students residuals के लिए हम लोग प्रोड्यूस करेंगे अपनी estimated values को using regression line y on x। तो हमारे पास regression line y on x is -1 plus 1x और x की वैल्यूज को यूज करेंगे 1 बाय 1 अपनी इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x जो है वो आपके पास 1 है, इसको यूज करेंगे अपनी रिग्रेशन लाइन में और इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसको -1 करेंगे तो आंसर इज 0।
देन नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 2 है, 2 को यूज़ करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास x की 3 है, इसको यूज़ करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1 करेंगे, आंसर इज 2। और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 3, 1 से माइनस करेंगे और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो दीज आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज यूजिंग रिग्रेशन लाइन y ऑन x। और देन स्टूडेंट्स फिर हम लोग जो है उसके एरर को जनरेट करेंगे विच इज़ द रेजिडुअल और यूजिंग रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो आपके पास रियल वैल्यूज जो हैं y की वैल्यूज हैं, इसको एस्टिमेटेड वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज़ कॉल्ड एरर टर्म और रेजिडुअल। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ऑफ y जो है वो आपके पास 0 है, 0 माइनस 0 आंसर इज 0। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 1 है, 1 माइनस 1 आंसर इज 0। देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 एंड 4 माइनस 4 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सम करेंगे आपने अपने रेजिडुअल्स का एरर टर्म्स का विच इज 0। तो सम ऑफ रेजिडुअल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। तो इसमें आपके पास तमाम टर्म्स जो हैं वो आपके पास एरर टर्म्स जो हैं वो आपके पास 0 हैं, तो आपके पास जो स्क्वायर टर्म्स होंगी वो भी आपके पास 0 ही जनरेट होंगी। तो आपके पास नेक्स्ट आंसर जो होगा वो भी इक्वल टू 0 होगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल इज ऑलवेज और also equal to 0। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपने रेजिडुअल्स को यूजिंग द y वैल्यूज corresponding to the estimated values by using the regression line y on x। तो y on x की लाइन को यूज करते हुए हम लोग एस्टिमेट करेंगे अपनी एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y और उसको रियल वैल्यूज ऑफ y से जो है वो डेविएट करेंगे, तो ये हमारे पास एरर टर्म होगी और इसको हम लोग रेजिडुअल भी कह सकते हैं। और सम ऑफ रेजिडुअल एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल के आंसर्स को कैलकुलेट करेंगे। In this lecture, I have discussed the term residual or error using regression line y on x and regression line x on y। और मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हम लोगों ने एस्टिमेट किया सम ऑफ रेजिडुअल एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।